Hello students, today we are going to learn ninth lesson of civics, that is democracy and equality. Democracy, Loktantra, equality, Samanta. In class 6 we have learned that democracy is a government in which all citizens are given right to vote to elect their leader or representative. According to Abraham Lincoln, democracy is government of the people, by the people and for the people. In other words, democracy is people's government. Let us read the given key terms which we will come across later in the lesson. Firstly, democracy, a system of government in which all the people of a country can vote to elect their representatives. PIL, Public Interest Litigation, a case filed in the interest of the public by representatives of the public to protect the fundamental rights of the people. Secularism, the belief that religion should not be involved in the organization of society, education, and other aspects of the society. Universal adult franchise, a right to vote given to all citizens without the discrimination of caste, class, color, religion, or gender. Let's begin the lesson. Democracy is the most popular form of government in the world. Active participation by the citizens, freedom to express one's opinion, resolving conflicts through consensus and consultation, equality, and justice are the main features of a democratic government. However, equality is the most important element of a democratic setup. Administration of law is the foundation of democracy. Treating everyone equally and upholding the dignity of fellow citizens are the core features of democracy. सो आज का सबसे पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है डेमोक्रेसी, पीपल्स गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स यहाँ बताए गए हैं जिनके बिना डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सक्सेसफुल नहीं हो सकता। जैसे एक्टिव पार्टिसिपेशन बाय द सिटीजन्स। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में सिटीजन्स का एक्टिव रोल होता है। क्यों? क्योंकि वह अपने नेता को खुद चुनते हैं। सेकेंडली, उन्हें फ्रीडम दी गई है अपने ओपिनियन को, अपने व्यूज़ को, विचारों को एक्सप्रेस करने की। थर्डली, उन्हें जो भी उनके बीच जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो डिस्प्यूट्स होते हैं, उन्हें रिजॉल्व यानी उन्हें सुलझाए जाते हैं इससे एग्रीमेंट और आपस में कंसल्ट करके। इक्वालिटी और जस्टिस जो है वो सभी को इक्वली मिले, ये ध्यान दिया जाता है। और इस इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो में इम्पॉर्टेंट तत्व डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का क्या है? इक्वालिटी है। कानून का प्रबंध इसकी नींव है, फाउंडेशन है। सभी को इक्वली ट्रीट करना और रेस्पेक्ट देना इसके अहम फीचर्स हैं। In a democracy, all adult citizens, regardless of their caste, religion, or gender or class, enjoy the right to vote. This is called universal adult franchise, which means that all adult citizens have the right to cast their vote and choose their representatives. It is based on the principle of one person, one vote, and each vote has equal value. This system of government recognizes the value of every citizen. डेमोक्रेसी में एडल्ट्स किसे कहते हैं? ऐसे लोग जिन्होंने 18 ईयर्स और अबव का एज गेन किया हो, ठीक है, उन्हें एडल्ट्स कहते हैं। तो डेमोक्रेसी में एडल्ट्स को वोटिंग राइट दी गई है। किसके थ्रू? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू। और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है? जिसमें सभी एडल्ट सिटीजन्स को वोटिंग राइट दिया गया है, जिसमें वह अपने नेता खुद चुन सकते हैं। इस गवर्नमेंट का यही सिद्धांत है, एक व्यक्ति एक वोट, और प्रत्येक वोट का मूल्य कैसा होता है? वैल्यू कैसी होती है? समान होती है। Besides political equality, all democratic governments aim to achieve social as well as economic equality for their citizens. तो सिर्फ पॉलिटिकल इक्वालिटी ही एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एम नहीं होता है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक इक्वालिटी भी अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड करे, ये एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एम है। तो मेनली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एम पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक इक्वालिटी पर बेस्ड है। Democracy can be categorized as political democracy,
Next is economic democracy and social democracy. So what is political democracy? In political democracy it is said that right to choose one's representative. तो political democracy में सभी citizens को right दिया गया है अपने own representative को चुनने का, अपने own choice वाले representative को. economic democracy में सभी को right दिया गया है किसी कोई भी trade या business करने का और किसी भी thing को consume करना यानी उपभोग करने का. सोशल डेमोक्रेसी के अंदर सभी को इक्वल राइट्स मिली है कि उन्हें सभी अवसर इक्वली मिले और सभी को समाज में रेस्पेक्ट मिले. तो समाज में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है सभी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए और सभी को समान रेस्पेक्ट मिलना चाहिए समाज में. To establish equality in the society, democratic principles should be applied in all its fields, political, social and economic. Lack of democratic values can restrict the composite growth of democracy in a society. तो डेमोक्रेसी जो मेन है उसके प्रिंसिपल्स वो कब होते हैं अचीव जब पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक इक्वालिटी अचीव हो जाती है तभी सोसाइटी में क्या होता है ग्रोथ या प्रोग्रेस होती है. Now coming to equality and Indian Constitution. The Indian Constitution recognizes that all people are equal and that no individual should be discriminated on the basis of caste, creed, religion, gender, tribe, economic status or education. The following provisions have been made in the Indian Constitution for this. तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें सभी नागरिकों को सभी सिटीजन्स को समान कहा गया है और ये बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जन्म धर्म जाति संप्रदाय आदि के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए. सभी इंडिविजुअल्स को इक्वल राइट्स दिए गए हैं. इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशंस ने कुछ प्रोविजंस बनाए हैं वो हम एक एक करके पढ़ते हैं. फर्स्ट वाला क्या प्रोविज़न बनाया है कॉन्स्टिट्यूशन ने? ऑल पीपल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ be it the president or any ordinary citizen and everyone has to abide by the laws laid down in the कॉन्स्टिट्यूशन. सभी व्यक्ति समान हैं कहाँ कानून की नज़र में इन द आइज ऑफ लॉ. चाहे वो प्रेसिडेंट हो चाहे वो ऑर्डिनरी कॉमन मैन हो सभी व्यक्तियों के लिए जो लॉज बने हैं वो इक्वल है चाहे प्रेसिडेंट हो या ऑर्डिनरी पर्सन. अपराध करने पर प्रेसिडेंट को भी वही सज़ा होगी जो एक आम आदमी अगर वही सेम अपराध करता है. तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा रिच और पुअर हाई पोस्ट या लो पोस्ट में. तो कानून की नज़र में सभी समान हैं. सभी को कानून के जो रूल्स बनाए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशंस के थ्रू उन्हें फॉलो करना ही होगा. नेक्स्ट पॉइंट है आपके The Constitution prohibits discrimination on the grounds of religion, race, caste, sex, disability or place of birth. All citizens have equal rights to use wells, tanks, bathing ghats or roads developed by the government for the पब्लिक. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी बताया गया है कि हमें किसी भी व्यक्ति को उसके जन्म धर्म जाति संप्रदाय लिंग रंग रूप आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए. यानी कॉन्स्टिट्यूशन हमें रोकता है कि हमें ऐसी डिस्क्रिमिनेशन किसी व्यक्ति के साथ नहीं करनी चाहिए. सभी नागरिकों को पब्लिक वेल्स पर टैंक्स पर कहीं भी बेथिंग घाट्स पर जाने की अनुमति है. ठीक है इसलिए इसे कॉन्स्टिट्यूशन ये राइट दिया है सभी को इक्वली. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज एवरी सिटीजन कैन एक्सेस शॉप्स होटल्स पार्क्स एंड प्लेस ऑफ अम्यूजमेंट विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस. तो सभी सिटीजन्स को बिना किसी पाबंदी के बिना रेस्ट्रिक्शन के किसी भी शॉप पार्क होटल में जाने की अनुमति है. उनको अधिकार दिया गया है किसने कॉन्स्टिट्यूशन में. नेक्स्ट पॉइंट है The Constitution also forbids untouchability and its practice any form. Untouchability मतलब अस्पृश्यता. यानी कॉन्स्टिट्यूशन ने अस्पृश्यता का व्यवहार करने की अनुमति नहीं देती है. अगर आप किसी के साथ अछूतो जैसा व्यवहार करते हैं अस्पृश्य व्यवहार करते हैं तो आप पनिशेबल है. नेक्स्ट To promote equal service prospects, there is a provision that grants equality of opportunity in matters of public employment to any office under the government. इसमें
इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की गई है कि कोई भी व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है, उसके साथ कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। प्रत्येक नागरिक को इक्वल गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, जिसके तहत वह किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में एम्प्लॉयमेंट पा सकता है। To include people with disabilities in the mainstream, the government enacted a law in 1955। तो जो डिसेबल पीपल है वो गवर्नमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज़ है उनको गेन नहीं कर पाते हैं, इसके लिए एक लॉ पास किया गया है 1955 में। इस लॉ के तहत उनके साथ इक्वल व्यवहार किया जाना चाहिए और उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। उससे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपके फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। फर्स्ट, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इन राइट्स के बारे में डिटेल आप अपने सीनियर क्लासेस में पढ़ोगे। इट एम्फोसाइजेज दैट ऑल पब्लिक बिल्डिंग शुड बी डिसेबल फ्रेंडली। और जो डिसेबल पीपल है वहाँ पर कोई पब्लिक बिल्डिंग्स होती है तो वहाँ पर सुविधाएं उनको प्रोवाइड करनी चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि जो डिसेबल पर्सन होते हैं, फिज़िकली फिट नहीं होते हैं, तो हम गवर्नमेंट प्लेसेस में देखते हैं कि उनके लिए स्टेयरकेस में जाना इम्पॉसिबल होता है, तो वो कैसे जा सकते हैं। एक रैंप बनाया जाता है, व्हील चेयर्स प्रोवाइड की जाती है जिसके थ्रू वो वहाँ पर पहुँच सकें। No law or judgment can be passed against the fundamental right to equality. Anyone found violating this right can be questioned in the court of law by filing a public interest litigation. कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें 6 फंडामेंटल राइट दिए हैं, जिनमें राइट टू इक्वालिटी के लिए कोई कानून या जजमेंट पास नहीं किया जा सकता। अगर कोई व्यक्ति इस राइट को यानी राइट टू इक्वालिटी को वायलेट करता यानी उसका उल्लंघन करता पाया जाता है, तो इसके लिए उसके प्रति कोर्ट में PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल कर सकते हैं और उससे कोर्ट में क्वेश्चन किया जा सकता है कि उसने इस राइट को क्यों वायलेट किया है। लेसन को वापस से केयरफुली रीड करें, रीड करने के बाद क्विक रिवीजन को आंसर करें। किसी भी डाउट के लिए नेक्स्ट वीडियो में क्लैरिफिकेशन करेंगे। ओके, थैंक यू।